When the truth is found to be lies, and all the joy within you dies. Don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Wouldn't you love somebody to love? You better find somebody to love. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रेडिकल स्क्वाड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मंकी मैन, जो मैंने कुछ महीनों पहले देखी थी और मैंने शेवी भाई को अब बहुत रिसेंटली दिखाई है मूवी। एंड आपका क्या कहना है इस मूवी के ऊपर? ऑसम। ओके, हाई रेटिंग है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैंने उसके अंदर नोट करी हैं जो आई थिंक मास लेवल पे या जर्नल लोग शायद नोट भी नहीं करेंगे। या बट उससे उस डायरेक्टर का और उन सब चीज़ों की ना मतलब पावर फील होती है कि यार फुल पक्की हुई फिल्म बोलता हूँ इसको मैं। या लाइक ये नहीं कि कच्चे हाथों लेके शुरू कर दी। actually when you watch the main guy Dev Patel do the all the action in the movie and the way that he's acting in the movie, you would not think that. And I have been watching him in movies for a long time actually. देव पटेल। Yes, he's been in like several movies before this. He actually also appeared in a movie with what's her name, the default independent girl of Netflix. Oh, What's her yeah. name? I don't know her name, but I know her face. Yeah, उसका नाम मैं भूल जाता हूँ। इंडियन एक्ट्रेस है, सेक्रेड गेम्स में भी थी वो। हाँ। तो उसके साथ भी इसने मूवी की है। जिसकी आंखें उसके मुंह से बड़ी हैं। हाँ 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 हाँ। उसके साथ इसने की थी द वेडिंग गेस्ट, एंड और भी बहुत सारी मूवीज में आया है ये। बट ये मोस्टली हॉलीवुड या ब्रिटिश मूवीज में आता है। ये देव पटेल मतलब वो ना जो मेन बंदा है। यस, एंड यू वुड नॉट थिंक दैट ही वुड मेक अ मूवी लाइक दिस। ओके। His face and his demeanor does not scream a brutal South Korean level of action movie. Like this movie reminded me on several sequences of Old Boy. You have not watched Old Boy? Old No, Boy? but you have told me about it. Yeah, it's a very brutal movie. Okay. Like it's not like even compared to Monkey Man, it's still very brutal. Old Boy is on another level of brutality, but it comes very close to it in terms of action sequences. Like there's a scene in it where he goes through an entire hallway killing a bunch of people, and this camera is like set on the corner like a 2D camera. Okay. So things like that reminded me of Old Boy in this movie, because there are a lot of very creative camera movements in this movie, and fight sequences were also very well creative. Very creative fight sequences. And what I think happened was that he realized that okay, something is happening in the other house. So And the house is very close to our window, so sorry Yeah. for that, guys. yeah. So I think what happened was that he wanted to star in a John Wick style action movie, and I think he had watched a lot of Korean action films from that time period, the early 2090s, and he realized that Hollywood is not going to cast him in a movie like this Yeah. because he's Indian, he's the comic relief guy, Yeah. or he's like the weird Indian dude. Yeah. And Bollywood does not have the guts to do it. Yeah. So he decided to just make the movie himself, देखो वो किया which उसने। is so badass. Okay, now there is lots of unpack there. Yeah. क्योंकि तूने नोट किया होगा हम लोग जब भी मूवीज देखते हैं मैं बार बार पास करके हम लोग आपस में बातें करते हैं, पर Yeah. मैंने कल बात कोई भी नहीं करी Yeah, क्योंकि आई वांटेड टू टॉक इन ऑन पॉडकास्ट। yeah.
बहुत सारे सेगमेंट्स अलग अलग पे बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि टेक्निकल चीज़ों के ऊपर आ जाते हैं। ओके। उस मूवी के स्पेशली फर्स्ट हाफ के अंदर एक अजीब घबराहट है, हाँ। एक क्लास्ट्रोफोबिक चीज़ है। यस। अब मैं क्योंकि वीडियोग्राफर भी रहा हूँ, फोटोग्राफर भी हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा उसका आइडिया है। नॉर्मली 35 mm यूज़ होता है नॉर्मली, ठीक है। उसको मजीद जूम इन करके क्लास्ट्रोफोबिक दिखाने के लिए 50 mm यूज होता है। बट आई थिंक, आई एम नॉट 100% श्योर, बट आई थिंक दे यूज 85 mm, ओह। which is super zoomed in and very very closed up shots। और उसके अंदर भी बाकी सब चीज़ें आउट ऑफ फोकस है, सिर्फ एक सब्जेक्ट या एक ऑब्जेक्ट ही उसका फोकस हुआ है, जो आपको सुपर सुपर फोकस करने पे मजबूर कर देता है, और वो भी Yes. ब्लिंक्स में आगे जा रहा है। ओह। ओके। उसके ऊपर से जो कलर थीम्स हैं, जो लाइक वो पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में यूज होती है, येलोइश yes. टाइप की, ब्लूइश टाइप की, येलो, ग्रीन एंड ब्लू हाँ। ह्यूज बेसिकली। या तो वो अलग अलग जगहों पे सीनों में यूज करके एक किस्म से फील कराया गया व्हाट मेन कैरेक्टर इज फीलिंग राइट नाउ। यस। ओके। यस। एक ये चीज मुझे बहुत जबरदस्त लगी। सेकेंडली कि देखो, ऐसा नहीं है कि यार एक कोई बंदा है, उसको गुस्सा चढ़ा, ग्रेटर गुड के लिए उसने कोई बहुत बड़ी फाइट कर ली, सुपर हीरो बन के बैठ गया। इट वॉज Yeah. नॉट लाइक दैट। यस। आई वुड से कि फाइटिंग सीक्वेंसेस का जो मेन कोर था, इट वाज वेरी क्लोज टू व्हाट्स द नाम भूल गया उसका, क्या नाम था, डेयर डेविल। या आई क्योंकि- नो व्हाई यू सेइंग दिस। हाँ, वो फाइट कर भी रहा है, पिट भी रहा है। अब स्टार्टिंग में दिखाया ये है कि भाई एक बंदा है जिसके साथ, उसकी फैमिली के साथ इतना बड़ा ट्रॉमा हुआ है। या। उस ट्रॉमे के पीछे दो लोग उसकी नज़र में हैं। और उसका जो लिंक है वो क्वीन से चलता आ रहा है, किंग से चलता आ रहा है। या। तो किसी तरीके से अपना इन ढूंढता है, वहाँ पे इन जाता है। जाने के बाद जैसे ही वो बंदे को देखता है, अपना आपा खोता है, वो फाइट प्ले कर देता है। या। फाइट प्ले करके वो बुरी तरीके से पिटता है, या। लाइक ही वाज नॉट विनिंग द फाइट। यस। उसके ऊपर भी सेकेंडली एक वुल्वरीन की चीज मुझे उसमें नजर आई। क्या? लाइक एक आम इंसान जिसके पास, मतलब वो फिजिकली इतना ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं है, सब भी नहीं, लेकिन वो भी जब छित्ता होगा हाँ। या वो जब जंगली हो जाएगा, तो ही वुड यूज एवरी थिंग Yeah, in his every power resource he he can find. can find. Like he was using his teeth, Yeah. which I've loved Actually, it. ये यहाँ पे मैं एक इंटरजेक्ट करूँगा कि मैं जब भी इस मूवी के अंदर कोई भी फाइट सीन है, एंड कीप इन माइंड we might not have realized, but the first half of the entire movie Yeah. is just the setup. Yeah, it was It was just the a build setup. up. There Yeah. was no fight in the entire first half, Yeah. but we did not realize this. And secondly, in every fight scene, there is a sense of desperation. There is Okay. a sense of like clawing through your teeth to get to the top. Yes. Type of feeling. Like you can see, you can feel the character's frustration and the character's struggle in every scene. Like when he's like, there's a scene in the elevator where his both of his hands are occupied by the opponent. So he uses his teeth to drive the knife into the throat of the other guy. Yes, that Like, was that very scene. very close, like very creatively cast, Yeah. but very close to see the TV series. Yeah, see, very creative. very close to see. एंड डेयर डेविल के अंदर भी सेम चीज़ थी कि उसके अंदर उसकी डेस्परेशन फील होती है। जो उसका सबसे पहला वो एक हॉलवे वाला सीन है, बिल्कुल, हाँ। जिसके अंदर वो पिट रहा होता है, बट वो बार बार उठ के लड़ता है, बार बार उठ के लड़ता है। वो आपको फील होती है उसके अंदर, आपको उसकी जो 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 चीज़ें उसको लग रही होती है वो आपको जेन्युइनली फील होती है। अच्छा, अभी आपने एक बात बोली कि जो फर्स्ट हाफ है वो एक सेटअप है, या बट यू डोंट गेट बोर्ड, या आपको फील भी नहीं होता। उसके पीछे भी साइंस है।
क्या? उसकी वजह साइंस ये है कि जो फास्ट पेस्ड कटिंग होती है या जो एडिटिंग होती है, व्हाटएवर यू कैन कॉल इट, या उसमें एक चीज यूज की जाती है, उसको होता है सिंकिंग विद द व्यूअर। ओके। इसका नाम है सिंकिंग विद द व्यूअर। उसमें क्या होता है कि एवरी, आप जब आप देखो हम आंखें झपकते हैं जब, तो ड्यूरेशन उसके बीच में आती है कि एवरी 3 सेकेंड्स टू 7 सेकेंड हम लोग आंख झपकते हैं। हाँ। तो जब आप मूवी देख रहे होते हो तो आप वो जो कट सीन्स होते हैं या जो चीज़ें होती हैं वो हर 3 सेकंड या 4 सेकंड के अंदर चेंज हो रहे होते हैं, फ्रेम बार 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 Okay. बार, और फास्ट पेस कटिंग आ रही होती है। Okay. तो वो जब आप आंख झपकते हो तो आप सीन के साथ साथ ही चल रहे होते हो, आपके साथ ही वो Oh, व्यूअर को I अपने साथ सिंक कर लेता है। interesting. जी। अब सिंक करने के बाद होता क्या है कि आपकी ब्रेन को जब भी आप आंख बंद करते हो तो वो इंफॉर्मेशन पीछे भेज रहा होता है, वो उसको प्रोसेस Okay. कर रहा होता है। अब वो सीन आप प्रोसेस करते ही हो तो दूसरा सीन चल जाता है, तो आपको सही स्टिमुलेट रखता है ये। सही सही. Okay, and since we are on technicality here, सॉरी, बोर नहीं हो जाना, हम have you लोग जाते हैं इस have तरीके you से। have you no actually we're discussing a movie, right? So we need to discuss नो, this आई thing. वाज टॉकिंग अबाउट द व्यूअर्स दैट वी डोंट हैव येट। Ah. And one more interesting thing is that when you were watching the movie, remember I said that I'm noticing a lot of things that I will tell later. या, Where do you think the movie was shot? वेयर, Yeah. दैट आई एक्चुअली डोंट नो। This entire movie is based in India. ओके India, Mumbai. ओके But it was not shot in India. The entire film is shot in Nepal. ओके। Yeah. That's why there were a lot of creative shots in the movie that I was noticing where they were hiding the names of the shops. They were hiding like the calligraphy that would be associated with Nepal and not India. And they basically used very creative shot to make it look like it's India. But it's not India, it's actually Nepal. And you might have noticed that a lot of the background extras look like Nepali people. They didn't look like Indians. But they were close enough to Indian that you could mistake them for Indian. मैंने ये नोट नहीं किया, लेकिन अगर लोगों ने ये किया है तो इसका मतलब कि बहुत बड़ा सेटअप डाला है। क्योंकि जैसे इन लोगों ने स्लम एरियाज दिखाए हैं, Yeah. और सबसे बेहतरीन सीन जो मुझे लगा स्टार्टिंग में जब वो ट्रैश बिन का ढक्कन बंद करता है, Yeah. तो एक कैमरे का सीन है। हाँ. ठीक है, याद है मैंने कहा था कि मुझे मालूम चला है इन लोगों ने कहाँ पे कैमरा चेंज किया है। Yeah. एक वो सीन है, उसके बाद एक ओवरव्यू आता है जिसमें एक प्रॉपर एक कट दिखाया हुआ है जिसमें स्लम एरियाज हैं और एक वेल स्टैब्लिश एरिया है। हाँ. सो वो बॉर्डर लाइन दिखाई। हाँ. सेकेंडली फर्स्ट फाइट में वही 85 mm ही यूज कर रहे थे ये लोग, करते करते नीचे जाके जब सीढ़ियों पे आता है तो फर्स्ट पर्सन लुक आता है। वो हाँ. फर्स्ट पर्सन लुक के ऊपर भी गोप्रो यूज हुआ है। I love that scene, by the way. That was a very creative use of GoPro. Okay. तो मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा था जहाँ पे वो फर्स्ट पर्सन व्यू आता है, क्योंकि मोस्ट मूवीज क्या करती हैं कि जब वो इस टाइप का कोई क्रिएटिव शॉट यूज़ करती है ना जिसमें फर्स्ट पर्सन आ रहा है या वो आ रहा है तो इट फील गिमिकी, या उसमें थोड़ा ना गिमिक फील होता है क्योंकि इट डजंट फील लाइक देयर वाज अ रीज़न फॉर दैट, दे जस्ट डिड इट बिकॉज दे कुड। बट इस मूवी के अंदर क्या था कि जब वो सीन आया है, दैट सीन could not have been more impactful other than a first person shot. क्योंकि वो जैसी सीन आता है तो उसके अंदर उसको ओपोनेंट के गले के ऊपर वो बहुत जोर से कुछ मारता है, वो आई थिंक गन का बट मारता है, कुछ करता है वो बहुत जोर से और बहुत क्लोजअप से दिखाई देता है आपको। तो वहां पे वो चीज, और जैसी वो सीन आया है और फिर वो खत्म भी हो गया, एंड इतने सीमलेस तरीके से खत्म होता है कि आपको पता नहीं चलता। यही चीज, ये इतना की बहुत सारी चीजें मैंने मूवी के अंदर नोट की हैं। अच्छा, मैंने एक चीज और भी नोट की है। मैंने ये नोट किया है कि इन एवरी फाइटिंग सीक्वेंस आप नोट करना कि चाहे वो फर्स्ट पर्सन लुक हो, चाहे वो आपका थर्ड पर्सन बोलते हैं दूसरे वाले को, या थर्ड पर्सन लुक हो, उसके अंदर जैसे जैसे फाइट की इंटेंसिटी बढ़ रही है और जैसे जैसे वो पिट रहा है वैसे वैसे कैमरा जो शेकियर होता जा रहा है,
शेकी से हाँ। शेकी होता जा पहले रहा है, बहुत स्टेडी रहता है, फिर ऐसा 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 क्योंकि शेकी होता जाता होता है। जाता है, क्योंकि हाँ। दैट्स योर लाइक स्टेट ऑफ माइंड। यस। और एक और चीज़ है, मैंने एक कहीं इंटरनेट पे एक इसका रिव्यू कहीं देख रहा था मैं, तो उसमें नीचे एक बंदा आया, उसने बोला कि दिस मूवी इज द डेफिनेशन ऑफ पंक रॉक। ओके। Like, and I agree that the movie has a very punk vibe to it, हम्म। because the movie just does not care what the audience or anybody watching this movie would want. The movie is just doing what the movie wants to do. It just unapologetically itself. It's हम्म। not trying to cater to a mainstream audience. It's not too art house या that it's like unwatchable. या It's like it just what it wants to be. And that also applies on a broader scale because of the topic that the movie touches on. Like, the movie touches on so many like injustices. या मोस्ट मूवीज क्या करती हैं, जब कोई इस टाइप का कोई कैरेक्टर होता है जो इनजस्टिस के लिए लड़ रहा होता है, हम्म। तो उसकी फाइट बहुत वेग होती है। लाइक, उसका या तो बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज किया जाता है उस चीज़ को कि वो सिर्फ एक इंडिविजुअल बंदे पे लड़ रहा है, हम्म। या तो उसको बहुत ज़्यादा वेग कर दिया जाता है कि वो हर किसी के लिए लड़ रहा है। बट मूवी के अंदर उसकी इनजस्टिस को स्पेसिफाई किया है और ब्रॉडर स्केल पे दिखाया है कि वो किस चीज़ के ऊपर लड़ रहा है। वो उन चीज़ पे लड़ रहा है कि जो लोग सोसाइटी के अंदर पिस रहे होते हैं बेसिकली, हाँ। जिन लोगों को कोई वॉइस नहीं मिल रही होती। और उसमें एक चीज़ नोट करना है कि जब वो आखिर के अंदर फाइट करता है उस होटल के अंदर, किंग्स वाले होटल के अंदर, तो पूरी मूवी इतना ज़्यादा शॉर्ट हुई है दैट ही इज पंचिंग अप, या he is punching up, he is going from one level to the other level to the third level, या finally to the king's level. या वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और मूवी के अंदर ना एक और चीज़ है कि आई पर्सनली से दैट दिस मूवी इज व्हाट एनिमल वांटेड टू बी। एग्जैक्टली। Yes. It's what animal wanted to be. The problem was that the animal movie was not punk rock enough to recognize its potential. मुझे ये लगता है एनिमल की अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा यहाँ या। पे। मुझे ये लगता है कि एनिमल के साथ सबसे बड़ी जो रुकावट थी या। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी, या। वो प्रॉब्लम ये थी कि इट वाज ट्राइंग टू कैटर अ मेन स्ट्रीम ऑडियंस। Yeah, it was trying to cater to the mainstream audience. You're right. यस, ये एक बहुत बड़ा उसके साथ प्रॉब्लम था। या। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मूवी हमने देखी है इट्स हाफ, Okay. इसलिए बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं है। Okay. मूवी इज एक्चुअली वेरी डेप्थ। And you're talking about animal here? एनिमल Okay. एनिमल जो है वो बहुत ज्यादा डेप्थ है इसके अंदर, हाँ। जो अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है बहुत ज्यादा लोगों को। जो मैंने मेरे पास पॉइंट्स कुछ थे, मैंने पहले डिस्कस भी किया था आपके साथ। या। तो वो एक अलग टॉपिक है, उस पर हम बाद में जाएंगे। अच्छा, मुझे इस मूवी में एक चीज़ और बहुत अच्छी लगी कि ये मूवी जो थी इट वाज वेरी 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 सेल्फ अवेयर, या। वेरी सेल्फ अवेयर। लाइक वो क्या मैसेज दे रही है, क्या मैसेज देना चाहती है, वो खुद Yeah. क्या है, वो किसको कॉपी कर रही है। Yes. लाइक जॉन वेक से अगर ये बुरी तरीके से इंस्पायर्ड है, सो दे मेड अ पॉइंट आउट ऑफ इट। Yeah, they made a reference to John Wick, and they showed how different it is from John Wick, because he says, I want something small but effective. इफेक्टिव। Because he said, basically that's what the movie is saying, that this is not John Wick, this is a small and effective film. यस, That's जॉन what the वेक के movie थोड़े से लाइक बड़े पॉइंट्स, बड़ी चीजें थी, इसकी Yeah. थोड़ी इसमें कम थी, एंड दे शोड इट। Yeah. ऊपर से वो डॉग वाला सीन, आई लव दैट। Yeah. डॉग का भी इसमें दिखा दिया हल्का सा रोल Thank God वगैरह। the dog did not die. ओ या, That would have been the most saddest part for me if the dog dies. dude, many people died and your sad part is the dog. Yes, always. It has always been a dog. I have on several occasions made people question my morality on this, but I will die on this hill that a dog
or any animal dying in a movie is 10 times more sad than any human dying. यार इसमें मुझे एक सीन याद आता है वो उसका चैंडलर का, वो जो बोलता है उसको, जोई कहता है यू डिडंट क्राई व्हेन बैम्बीज मदर डाइड, वो बोलता है या इट वाज वेरी सैड व्हेन द डूड हु ड्रू इट स्टॉप ड्राइंग इट, Yeah. बोलता है यू आर डेड इनसाइड, फौरन फतवा दे देता है उसको, यू आर डेड इनसाइड। या तो एक तो ये चीज़ थी मूवी की, और दूसरा ये है कि ना मतलब उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि एक तो इन लोगों ने जो हिंदुइज्म को जितना से इनकॉर्पोरेट किया मूवी में, विच इज़ ऑल्सो ग्रेट। लाइक आई कैनॉट बिलीव दैट देव पटेल have been living in like a foreign land for so long, and he had to train with a voice Indian trainer accent. with a voice trainer for the Indian accent, Yeah, because he speaks perfect Hindi in this movie. yeah, So I cannot, and the way that he captured the feeling of living in slums in India, and I have seen these types of slums in Pakistan as well. So I could really feel that claustrophobic environment, Yeah. because I have been in these environments. So I Yes. remember the feeling, and this movie gave me that feeling, which मुझे is very interesting. मुझे बड़ा ज़बरदस्त इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, एंड आई माइट बी रॉन्ग ऑन इट। Hmm. इसमें एक चीज़ दिखाई गई कि ओल्ड वर्ल्ड में, पुराने ज़मानों में, गॉड्स मीन द एंटिटीज, Okay. और आज के ज़माने में जैसे ये रेफर कर रहे थे गॉड्स को, हाँ. दे वर रेफरिंग द एलीट क्लास, Yeah. like how they use humanity and their Yes. belief systems and all. Yes. And Because then they actually, like, they make the comparison themselves actually. That's Yeah. why. Yeah. so I like that thing as well, क्योंकि Yeah. it's very hard when you're living on a positive side of the society Yeah. where you live in elite class. It's very hard to see what's going on beyond that wall. Yes. And the fact that you and me both, we have seen both sides actually. Yeah, So we know what goes on in that side, and we also know what goes on in the elite side as well. yes, So we can really like feel the movie on a different level actually. that's actually really true. Yeah. And like I cannot believe that this is the first time that he has written and directed a movie. Yeah, It did not feel like a first time movie. It feels like at least a second or third attempt, because it was so well made. And even while being well made, I'm saying the movie is punk rock, because even in punk rock there is intentional roughness yeah, that is in punk rock. Like you cannot make a punk rock song and make it polished. It doesn't count as a punk rock song then. okay, Same with this movie. Like the movie is not polished. It's actually very rough on several occasions. Like there were hard cuts in the movie that I could recognize. There were scenes where the fight sequences got so desperate that it didn't feel like an action movie anymore. It felt like a survival. survival thriller. Yeah, So that's the brilliant of this movie in my opinion. And we haven't even like touched on the bigger themes of the movie, like how people use religion to punch down and to control people, yeah, and several things that were like made up of real cases, like the scene with the Hijra community, yeah, right? That sequence was inspired by a real event that happened with them. okay, Like there were several cases that were happening in India at the time yeah, that Dev Patel read about, and he got upset about it, that like my home country is doing this to people. He got upset about it. That's why he See, wrote the movie. that's the thing actually.
आज तक ये एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी Yeah. ये इंटरसेक्स कम्युनिटी Yeah. बहुत बड़ी कम्युनिटी है। Yeah. आज तक इनके लिए आवाज मतलब हल्की फुल्की मूवीज तो बन गई हैं Yeah. पर एक सही वॉल्यूम के ऊपर आवाज नहीं उठाई गई Yeah, है। and also the fact that this movie all showed the scene where the landowners got killed by the police. That actually happened. Like it was not a old news. Like Yeah. it wasn't like something that happened in the 70s or 80s. It happened like at the most 5 years before the movie was made. Shit That's यार। recently. So that actually the movie was very brave to put all of that Yeah. in the plot line. And then like there's another scene where he's uh, practicing the uh, practicing his fight sequences with the rhythm of the beat. Oh Remember? yeah, the training sequence. There is a when I first watched that scene, I started to feel the anger of the character actually. I genuinely felt it because जब वो फाइट कर रहा होता है वो बोरी को जब मुक्के मार रहा होता है तो पीछे बैकग्राउंड पे वो सिनेरियो चला रहा होता है उन्होंने एडिट इस तरह से किया उसको कि वो रियल सीन दिखाएं जिसमें वो औरतों को मार रहे हैं उसमें वो लिखा हुआ है स्टॉप किलिंग मुस्लिम्स और ये सब चीज़ें और वो उस चीज़ को फील करके उसको पंच कर रहा है और वो इतने ज़बरदस्त तरीके से एडिट हुआ है कि आई स्टार्टेड टू फील दैट एंगर। या मुझे लगता है ये जेन्युइन जो था ना ये इशू उस मेन बंदे के साथ है। हाँ वो वाकई में लाइक दिस मूवी वाज फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश फेल्ट लाइक अ पैशन प्रोजेक्ट। पैशन It प्रोजेक्ट did not feel like a movie made for money. Yeah. It was made, if I'm pretty sure that it was not given like the right amount of production, he would have released the movie for free. या Just so that people could see what his vision was. Okay. So, like sequences like these and the overall production of the movie, it felt like a passion project. And you know who produced the movie, right? नो आई डोंट। uh, keep forgetting his name. He's the director of Get Out. ओह या यू टोल्ड मी दैट। Yeah, and oh, his name is Jordan Peele. ओके। Jordan Peele. He actually he's also a comedian as well because he used to have a show with called Kale and Peele. दैट्स Something like वियर्ड that. कॉमेडियन इज प्रोड्यूसिंग अ मूवीज लाइक दिस। Yes, he for a long time he's been a comedian and he's very well respected in the comedian whole Industry. community. Yeah. या But he made Get Out, then he made Nope, which I still need to watch. And then when he watched like a very rough cut of this movie, he basically said that at first Dev Patel actually went to Netflix so they could produce it, but they were getting too much involved. Like you should cut that out, you should cut this out. It's too amateur and this and that. He came and he said, actually, leave Netflix. I will give you all the money you want. ओके You can do whatever the hell you want to do ओके with the movie. That's like he basically made a deal with him that he will give him all the money and he can just make the movie as he wants to make it without any interference. ओके। And that's how the movie got made. Otherwise we would never actually see the film. यार मैं इसमें ना एक और चीज मेरे को बड़ी पसंद आई थी और खैर एक जो फिलॉसफी वो बोलता है इसको कि यार पेन इज द बेस्ट टीचर देयर इज एंड इट विल लीव यू वंस इट डन टीचिंग यू। Yes. ये और ये अपने आप में एक इतनी बड़ी फिलॉसफी है कि इस पे जितनी बात की जाए कम है। Yes. Because in order for you to get rid of the pain, you have to get rid of that part
who don't want to be learned, Yeah, who doesn't want to learn? who doesn't want to learn, right? Yeah. सो एक तो ये फिलॉसफी, दूसरा कि वो इतना ज़्यादा गुस्से में होता है, छिता हुआ वो होता है कि उसके पंचेस सही नहीं चल रहे होते हैं, Yeah. तो वो जब उसको म्यूजिक के रिदम से बताता है, एंड देन इट ही फाउंड्स हिज बैलेंस, Yeah. which is awesome. Like in fight you need that rhythm. True. Like you can't just go in blindly. Yeah, what he And did before. yeah, what he did before. And okay, so let's wrap it up. Okay. And let's discuss some of our favorite sequences from the movie. Like, what are your favorite sequences? My favorite sequence had to be the Raksha race number 1. Really? Yeah, which is not accurate, I get it, but मुझे अच्छी लगी थी वो. Okay. सेकंड मेरे को बहुत अच्छा लगा था कि जब वो उसको बैलेंस के साथ सिखा रहा होता है. Okay. और तीसरा मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट जो था वो मूवी का सबसे वियर्डेस्ट पार्ट है, जिसमें वो ड्रग लेता है और अपना सीना खोलता है लाइक बजरंग बली, और उसमें हाँ, सीना दिखाता है अपना, वो सब, वो interesting. पूरा सीक्वेंस Hmm. मुझे वो बहुत अच्छा लगा था, बिकॉज ये जो सिंबलाइज करता है, Hmm. ये जो आपको सिखाना चाह रहा है, Hmm. जो समझाना चाह रहा है, दैट पार्ट इज एक्चुअली बिगर देन द मूवी इटसेल्फ. अच्छा, जब मैं ये देख रहा था ना, तो जब ये वाला सीक्वेंस आया तो मूवी का जो फ्लो था, जब मैं पहली दफ़ा देख रहा था ये, तो फ्लो मूवी का ना मुझे ऐसा लगा थोड़ा सा ब्रेक हो गया, क्योंकि वो थोड़ा सा आर्ट हाउस उसमें चली गई, कि वो थोड़ा एक एसिड ट्रिप में चला गया अपनी, और लाइक ही इज हैविंग दिस विजन और ये वो, तो उसमें ना थोड़ा मुझे मूवी का फ्लो थोड़ा सा टूटना फील हुआ था. बट जब मैं इसको री वॉच कर रहा हूँ, नाउ दैट सीक्वेंस मेक टोटल सेंस. ओके. पहले नहीं था. पहले मुझे, क्योंकि आप जब फर्स्ट टाइम मूवी देख रहे होते हो तो यू डोंट नो व्हाट्स कमिंग, यस. सो यू डोंट नो हाउ इट्स ऑल गोना फिट टुगेदर. यस. सो व्हेन आई वाज वाचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम और उसमें वो पूरा सीक्वेंस आया, तो आई हैड टू पावर थ्रू इट अ बिट, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि लाइक व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दिस सीक्वेंस. ओके. But now when I watch the movie in its totality, knowing what happened at the end and everything, the whole sequence makes perfect sense and it doesn't feel like a bore. ओके. But when I was watching it for the first time, it felt like a very boring sequence. Which Well, is I was interesting. watching it first time, but I got it. I love it. Interesting. So Okay. that's your favorite. My favorite. And what's your favorite? Okay, my favorite is actually the first fight that he Okay. does, because it's like the camera movement and again the desperation. There's a scene where he like one character is going into the bathroom to escape. He grabs his leg to pull him back. Hmm. और कैमरा जो है वो ऊपर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया है, जिसमें उसका सर जाके उस पे WC पे लगता है और वो वहीं पे मर जाता है. Yes. Yes. Yeah. That scene was so unexpected and so brutal. Yeah. I was not expecting that to happen. मैंने जब पहली दफा भी वो सही सीन देखा था ना, तो मैंने कहा, ये क्या हुआ है. ये तो बहुत जल्दी मर गया. वो जो कि like a natural thing, normal thing. या ये सीक्वेंस मेरा बहुत फेवरेट है. एक वो सीक्वेंस मेरा बहुत फेवरेट है जब बिल्कुल एंड के अंदर एक फाइट आती है, जिसके अंदर पीछे ब्लडी वुड का गाना चलता है. धन धन. हाँ, दना दन करके दना नाम दन. है. एंड इट्स लाइक हैवी मेटल मिक्स विद बॉलीवुड Yeah. म्यूजिक, एंड इट वाज सो क्रिएटिव, सो ऑसम, बिकॉज उसकी जो एनर्जी थी ना, मेरी नज़र में पूरी मूवी के अंदर एक खास किस्म का रिदम चल रहा था. लाइक मूवी पहले बिल्डअप होते होते, फिर उसके बाद फाइट सीक्वेंसेस आना शुरू हुए, फिर उसके बीच में थोड़ा सा स्लो हुई मूवी, फिर उसके बाद मूवी चलती रही है, मूवी आगे बढ़ती रही है. Hmm. और उसका जो फ्लो था और आखिर में उसकी जो पीक थी, हाँ. वो ये सीन था. इट वॉज द पीक फाइट दैट बेसिकली culminated. Taking the mosh pit to the whole new level. Yes, taking the mosh pit to the whole new level. And
ये सीक्वेंस मेरा बहुत प्यारा, मेरा बहुत फेवरेट है। और दूसरा मेरा फेवरेट सीक्वेंस है somebody to love वाला, स्टार्टिंग वाला। या जिसके अंदर ये एलिवेटर में जब लड़ रहा होता है और पीछे वो गाना चल रहा होता है, डोंट यू वांट समबडी टू लव, और वो इतना टू बी जबरदस्त लगा ऑनेस्ट था वो मुझे। गाना एक्चुअली किसी की भी बैकग्राउंड पे आता है वो सीन हो ही अच्छा जाता है। एक्चुअली सॉरी आई एम मिक्सिंग इट अप। जो एलिवेटर वाला सीन है उसमें somebody to love नहीं चल रहा होता, उसके अंदर वो चल रहा होता है रिवर्स ऑफ बेबीलोन, बोनी एम का गाना। Okay. बोनी एम जो है वो बड़ा हमारी फैमिली में एक्चुअली बहुत मशहूर है वो बैंड, क्योंकि हमारे जो मामू हैं उनको उसका एक गाना पसंद है, वो मैं नाम भूल जाता हूँ उस गाने का हमेशा। वो बड़ा अच्छा गाना है वो। एक वो गाना उनको पसंद है। मेरा एक जो बहुत फेवरेट है वो है रास्पुटीन। ओके। वो बड़ा इंटरेस्टिंग गाना, ला रा रास्पुटीन लवर ऑफ द रशियन क्वीन, इस टाइप का गाना है वो। इट्स अ वेरी कूल सॉन्ग। तो वो Okay. रिवर द बेबीलोन जब चलता है उसमें जो वो फाइट करता है ना, दिस दिस डिस्को ग्रुप, इसके कोई भी गाना आप किसी एक्शन मूवी के बैकग्राउंड पे लगा दो और उसके फाइट सीक्वेंसेस इस गाने से मैच हो जाए अगर, so it creates such a cool flowing sequence. Like there are sequences people have made edits of Tarantino movies mixed with Rasputin, and also The Boys. द बॉयज के बहुत सारे एडिट्स हैं यूट्यूब पे जिसमें रास्पुटीन पीछे चल रहा है और इसके अंदर बुचर जो है वो उनसे लड़ रहा है। ओके। और इट फिट सो परफेक्टली। तो वो रिवर्स ऑफ बेबीलोन वाले जो सीन था उसके अंदर वो बिल्कुल एंड के अंदर जब उसके दोनों हाथ रुक जाते हैं तो वो अपने तीस से जो उसको बंदे को मारता है, या वो सीन मेरा बहुत फेवरेट है। और मेरा सबसे आला नस्ल का जो मुझे इंटरेस्टिंग सीन लगा ना, जब एंड के अंदर वो उस बाबा शक्ति को मारता है, क्योंकि बाबा शक्ति को मारने से पहले जब वो उसे भीख मांग रहा होता है कि लाइक फॉरगिव मी, तो आगे से वो बोलता है ओनली गॉड कैन फॉरगिव यू नाउ, या and he kills him. That's actually him admitting that he has also sinned. He admits in the movie that he has also sinned and there is no going back. And then he dies, which is like the most brutal way to end the movie, to be honest. या It was, there was no plot twist or anything like this. Old boy had a plot twist which makes me very hesitant to rewatch the movie again. But इस मूवी के अंदर कोई प्लॉट तो नहीं था, बट इट वाज स्टिल वेरी ब्रूटल एंड आई लव दैट लाइक वेरी रॉ एंडिंग. It didn't Nice. feel like a happy ending or anything. It felt like a very raw ending. फॉर अ रॉ मूवी। Yeah, it kept the momentum throughout. या That's what I loved about the movie. And also, one more thing is that all the slangs and all the language that was used by the criminals in the movie felt very authentic to me. या It didn't feel like a force action movie type of dialogue. या It felt real. And especially we gotta talk about the Queenie. या We gotta talk about her. I keep forgetting her name. I do not remember her name. If somebody remembers the name, comment down below. I remember her from Golmaal. And then I've watched a movie very recently. I don't remember which. Like it was a movie or a TV series where she appeared in a small role. And that's how I found out that she got slim. she always like on the movie no matter what type of role she's coming in. Yeah. Yeah, I think. Oh, I think I watched Merry Christmas, in which she was. Yeah, I remember. I think she was in Merry Christmas. Hmm. So, I guess that's all we have to say about the movie, Yeah. right? So, If you want to watch our previous podcast, which was on Shaitan. Shaitan Shaitan. was done. Our last podcast was on Blade Runner. Oh yeah, yeah. If that one you want to watch, it's right there. See you there. Bye bye. Bye bye.